हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आप भी चाह रहे हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी 8th पे कमीशन लागू करे, 8th पे कमीशन की हमें सैलरी मिले और इसका फिटमेंट फैक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो में आप देखेंगे संसद में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8th पे कमीशन के बारे में बता रही हैं। तो इस वीडियो में आप देखिए निर्मला सीतारमण को, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, और देखिए और सुनिएगा। I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre- and post-7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because yes, I will. No, don't worry. I hear you. After 16 years. Oh, please, no. Please sit down. Honorable member, please sit down. I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So, I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong
and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. Thank you. Well, if you can cast out, yes, if you've done several wrong, we talk about it. We don't shy away. We don't shy away. But this decision, which was, I don't need to hide. I'm saying it openly. I'm saying it before you. If it wasn't in the court. दोस्तों, जब से 8वें वेतन आयोग के गठन को जब से केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, तब से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन लागू होते ही उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा और इसी तरीके से पेंशनर्स जो हैं उनको भी जब से 8वें वेतन आयोग गठन की जब से केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, तब से पेंशनर्स में भी खुशी की लहर है। लाखों पेंशनर को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही उनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, देश में फिलहाल 7वां वेतन आयोग लागू है। यह वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में कैसे सैलरी बढ़ेगी, अब ये फार्मूला भी आप जान लीजिए। 8वें वेतन आयोग में सैलरी जो है फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है, यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 51,000 हो जाएगी। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधित करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। इसे समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों की और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी पर पड़ता है, बेसिक पेंशन पे पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,500 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो इसकी कुल सैलरी 15,500 इंटू 2.57 यानी कि 39,835 रुपये होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी और आपने अभी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी देखा सुना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों, सभी चिरपरिचितों को भेजने की, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।